or we have to buy calls because price is trading above PDH and beyond the previous day's range, right? So it is 7,500 rupees per lot, right? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Abhijit and today I am going to discuss about the importance of PDH and PDL in day trading. So let's get started. So for those who are complete beginners in the market, जिनको नहीं पता है कि PDH and PDL क्या होता है, PDH stands for previous days high and PDL stands for previous days low. इसका मतलब जो पिछले दिन का ट्रेडिंग रहा है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट था that is called as previous days high and the lowest point is called as previous days low. So in first half of this video I will be explaining all the theory regarding this concept, and in the later part I will be explaining live examples of Nifty and Bank Nifty and how to profit from it. So please watch till the end. What is the importance of PDH and PDL in day trading? Previous days high and low points are very useful for intraday trading as these levels are watched by many professional traders. It is also considered as a hot price action zone because ये दो लेवल ऐसे है जहाँ पे highest price action होता है and these are the levels where you should put your focus on. It works very well at support or resistance which totally depends upon the price. इसका मतलब है कि अगर प्राइस उसके ऊपर है it can be used as a support और प्राइस उसके नीचे है तो it can be used as a resistance. As a thumb rule, when price is trading above PDH, it is considered as bullish and vice versa, but it is not always the case. इसका मतलब क्या है? As a general rule, we assume that whenever the price is trading above the previous day's high, the market is bullish, and whenever the price is trading below the previous day's low, it is considered as bearish. But इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अगर PDH के ऊपर है तो हमें सिर्फ लॉन्ग जाना है. नहीं, there are different scenarios which I will be explaining in the later half of the video. How to use PDH and PDL for intraday trading. PDH and PDL both the level can be used as a breakout trade or a breakout failure trades depending upon the price action market unfolds at these levels. इसका मतलब है PDH and PDL को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ ब्रेकआउट ट्रेड और अ ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड. इसके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. These levels can also be used as a target for your existing trades. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया है अपार्ट फ्रॉम दिस लॉजिक, ठीक है, तो आप PDH एंड PDL को यूज कर सकते हो एज योर टारगेट. क्योंकि जो रेगुलर ट्रेडर्स है उनको पता होगा मेनी टाइम्स मार्केट कम्स टू प्रीवियस डेज हाई और प्रीवियस डेज लो एंड इट स्टॉल्स देयर. ओके, वहां से रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, सो यू कैन यूज दिस लेवल्स एज योर टारगेट. It can also be used to identify sideways day. It is the most important use of this level. और कैसे identify करना है I will show you. So the first pattern is PDH or PDL breakout. When price breaks out from PDH or PDL and sustains, it may give a unidirectional movement in the direction of the breakout. इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ये PDH है, this is PDL and price is trading like this and then suddenly it breaks the PDL, then we are gonna enter here with stop loss above the PDL, right, and the target is open because we are expecting price to give unidirectional movement, so we have to capture the entire movement. Option buying would do wonders here and can give huge returns if you enter on the right time and at the right location. Right? Option buying क्यों इस दिन करना है हमको? Option buying को क्या चाहिए होता है? What does option buying needs? A good momentum, right? Option buying requires a good momentum and a unidirectional movement, right? तो ही आपको फायदा होगा ऑप्शन बाइंग से. बिकॉज अगर ऑप्शन आपने बाय किया है कोई और मार्केट अगर साइडवेज है, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट होगा. लेकिन अगर वो साइडवेज भी है देन ऑल्सो यू विल लूज बिकॉज ऑफ द थीटा डिके, राइट. तो ऑप्शन बाइंग हमको तभी करना चाहिए व्हेनेवर देयर इज मोमेंटम इन द मार्केट, व्हेनेवर देयर इज वोलेटिलिटी इन द मार्केट, राइट. सो जब भी
This pattern arrives whenever there is a breakout of PDH or PDL. Market tends to move higher or lower with higher speed. Right? तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, there are good chances that you will be in profit. But what if the breakout fails? Then also you will get a trade here. PDH or PDL breakout failure. When price breaks out from PDH or PDL but unable to sustain and then comes back again inside the previous day's range, it is considered as a breakout failure. इसका मतलब क्या है? This is PDH, this is PDL. अगर market is trending like this and then it breaks the PDL but instantly came back again inside the PDR. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपने breakout trade लिया and instantly your stop loss got hit here. तो possibility क्या है? It can move in the opposite direction of the breakout, ठीक है, और it can stay sideways. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर breakout failure हुआ है तो एक तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर it will go sideways like this, ठीक है. तो यहाँ पे हमें ये नहीं करना है कि यहाँ पे गया फिर से अगर उसने ब्रेकआउट दिया तो री एंटर करना है, नहीं. अगर मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट फेलियर दिया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल फेल अगेन टू ब्रेक दिस लेवल, ठीक है. अगर वो फिर से ये लो ब्रेक करता है देन देयर इज अ गुड चांस ऑफ द ब्रेकआउट, बट दैट इज रेयर ओकेजन, ठीक है. हमें क्या करना है? ऑप्शन सेलिंग शुड बी डन हियर एज यू विल बी प्रॉफिटेबल इवन व्हेन द मार्केट स्टेज साइडवेज. यहाँ पे हमें क्या करना है? सिंपली मार्केट ने जो हमें ब्रेकआउट फेलियर दिया है, ठीक है, तो हमारा प्रेडिक्शन क्या है कि मार्केट विल आइदर गो अप और विल स्टे साइडवेज, राइट. तो हमें यहाँ पे लोअर लेवल्स के पुट सेल करने हैं, ठीक है. यहाँ पे हम लोग लोअर लेवल्स के पुट सेल करेंगे, सो वी विल बी प्रॉफिटेबल इवन इफ द मार्केट गोज अप और द मार्केट स्टेज साइडवेज. ओके. How to identify sideways day? It is the most important thing because market is trending only 30% of the time and 70% of the time it is sideways or range bound, ठीक है. तो हमारी जो भी डे ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी होगी उसमें हमें साइडवेज डे को कैसे काउंटर करना है या फिर उस दिन कैसे ट्रेड करना है, इट बिकम्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है. तो हाउ टू आइडेंटिफाई साइडवेज डे? When price is trading between PDR, that is previous day's range, or it has taken resistance or support from these levels and came back again in PDR, there is a high percentage of chances that it will be a sideways day. इसका मतलब this is a PDH, this is a PDR. अगर market is trending like this, that is inside the previous day's range, the market is likely to stay sideways. इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ये साइडवेज ही रहेगा, बट देयर इज अ हायर परसेंटेज ऑफ चांसेस कि मार्केट विल स्टे साइडवेज इफ इट इज ट्रेडिंग इनसाइड द प्रीवियस डेज रेंज. तो उस दिन हमें क्या करना है? नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज लाइक स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स वुड बी वेरी मच प्रॉफिटेबल ऑन दिस टाइप्स ऑफ डेज, राइट. तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल्स कैसे करना है? दिस इज वेरी वास्ट कंसेप्ट, वो हम अगले वीडियो के लिए रखते हैं, ठीक है. सो गाइस, मेरे पास एक डेटा है बैंक निफ्टी का विच आई हैव डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शनेबल्स. ऑप्शनेबल एक यूट्यूब पे एक चैनल है, उन्होंने एक स्ट्रैडल्स के ऊपर काफी अच्छा वीडियो बनाया था. इफ यू वांट टू वॉच द वीडियो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में आई बटन है, वहां पे भी आ जाएगा. तो दिस डेटा इज फ्रॉम 2005, ठीक है. तो ये क्या कंक्लूड करता है कि टोटल ट्रेडिंग डेज है 3826, ठीक है, फ्रॉम सितंबर 2005 टू मार्च 2021, एंड दिस इज Bank Nifty's movement. This is plus minus 0.8%, second is 0.822%, and third is more than plus minus 2%. What does it mean? It means कि 57% of the time market stays between plus 0.8% to minus 0.8%. इसका मतलब क्या है? More of a sideways movement. Okay, 57% of the time, guys, that's a lot. And 24% of the time it was between 0.8 to 0.8 to 2%, and only 18% of the time it moved beyond plus or minus 2%. Okay, तो conclude क्या होता है guys कि 57% of the time market stays sideways. You can't skip sideways days.
राइट। तो साइडवेज डे के लिए हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होना काफी जरूरी है, बिकॉज these are the days which occurs frequently, right? So let's move towards the examples, guys. Okay, this is Nifty 5-minute chart, and this red line over here is a previous day's high. This green line is a previous day's low. Okay, the market opened here and then it rallied, but then it met with a selling pressure over here with this week, and then it came back all the way to previous day's high. यहाँ पे देखो इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, देन अ स्मॉल बुलिश कैंडल एंड मार्केट वेंट अपवर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट. Price is trading above the previous day's high, so previous day's high will be a support now, right? Exactly, Nifty took support here and went upwards. Okay, next is, okay, look this example. Market opened here, then market gave a breakout candle, then small retracement and a selling pressure over here. You have to short here. अगर यहाँ पे आप शॉर्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा. एक तो आप स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रखोगे और अबाउ द प्रीवियस डेज लो, राइट. तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है ऑन द रिट्रेसमेंट एंड लुक एट द फॉल. ओके, ये एग्जांपल गाइज अभी 10 जून का ही है, ठीक है. और इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसके प्रीवियस डे का क्या ट्रेडिंग सिनेरियो था. कि प्रीवियस डे में क्या हुआ था, काफी अच्छी वोलेटिलिटी दिखी थी मार्केट में. मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया था ऑन दिस लेवल, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जा रहा था. देन फिर सडनली बिग मूव केम एंड इट केम इनसाइड द रेंज. दिस टर्न आउट टू बी अ ब्रेकआउट फेलर, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हायर लेवल के कॉल सेल करने हैं आपको, ठीक है. अगर पीडीएस का ब्रेकआउट फेलर होता है तो हायर लेवल के कॉल सेल करने हैं आपको, शॉर्ट हायर लेवल कॉल्स. एंड अगर प्रीवियस डे लो का अगर ब्रेकआउट फेलर होता है देन शॉर्ट लोअर लेवल पुट्स, ठीक है. तो यहाँ पे अगर इस कैंडल पे आपने कॉल सेल किया होता यू विल बी इन मच मोर प्रॉफिट, है ना. तो नेक्स्ट डे में क्या हुआ था गाइस, देखिए मार्केट डिडंट क्रॉस प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ठीक है. एंड मार्केट ओपन हियर एंड क्लोज हियर, ओके, मोर ऑफ अ साइडवेज मूव. नेक्स्ट इज मार्केट ओपन हियर एंड देन वेंट डाउन, took support exactly at previous day's low, and look at the rally. I am using nothing guys, no indicator, no other levels, only previous day's high and previous day's low. Okay, and if you combine this with your other indicators और जो भी indicators या फिर level जिसके साथ आप comfortable हो, it will be a deadly combination. Okay, सिर्फ आपको practice करना है और back testing भी करना है. लुक एट दिस एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे ब्रेक करने का इसने ट्राई किया बट यहाँ पे अपर वीक बनाया है. इसका मतलब क्या है कि मार्केट विल लाइकली टू फेस रेजिस्टेंस एट प्रीवियस डेज हाई, ठीक है. तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो कॉल को और यू कैन वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, राइट. तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट वेंट डाउनवर्ड्स, अगेन रिट्रेस्ड बैक एंड यहाँ पे फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया एंड देन लुक एट द फॉल. आप अगर चाहो तो यहाँ पे भी आप कॉल सेल कर सकते हो और यू कैन शॉर्ट हियर एज वेल, शॉर्ट कॉल्स आई एम सेइंग, ओके. बिकॉज अगर मार्केट प्रीवियस डे के रेंज के अंदर है तो इट विल बी मोर ऑफ अ साइडवेज मूवमेंट, राइट. तो यहाँ पे मार्केट मतलब बड़ी मूवमेंट देने के चांसेस काफी कम है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट बड़ी मूवमेंट नहीं देगा, बट उसके चांसेस काफी कम होते हैं, ठीक है. सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर प्राइस इज ट्रेडिंग इनसाइड द पीडीआर ऑलवेज प्रेफर टू सेल ऑप्शंस, ओके. एंड व्हेनेवर प्राइस इज ट्रेडिंग बियॉन्ड द पीडीआर बाय ऑप्शंस, ओके. नेक्स्ट डे का देखिए गाइस, मार्केट ओपन हियर एंड देयर इज नो ब्रीचिंग ऑफ प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो. सो मार्केट ओपन हियर एंड मार्केट क्लोज हियर, मोर ऑफ अ साइडवेज मूव. देखिए दिस इज कॉल्ड चॉपिंग. यहाँ पे ओपन हुई, देन वेंट बिलो द डेज लो, अगेन वेंट अबाउ द डेज हाई एंड मार्केट वाज ट्रेडिंग लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड अ चॉपी मार्केट which we should avoid. So I have already suggested you guys that these are the days where you should do straddles
and strangles. Okay, look at this example. This example is of 31st May last month. यहाँ पे क्या होता, मार्केट ओपन हियर एंड देन वेंट बिलो. ठीक है, प्रीवियस डे लो ब्रेक करने का उसने ट्राई किया, बट यहाँ पे एक लोअर वीक बनाया है. ठीक है, और यहाँ पे बाइंग प्रेशर एंड देन मेड अ वेरी बिग बुलिश कैंडल. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पुट सेल करना है गाइस, बिकॉज प्राइस इज स्टिल इनसाइड द प्रीवियस डेज रेंज, राइट. तो यहाँ पे हमें वी हैव टू शॉर्ट पुट्स हियर. Okay, lower level puts, right, and at this candle market broke PDH as well. तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो you can continue your put position, you can hold your put positions, but I would suggest कि ये जो रैली है वो आपको नहीं मिलेगी उतनी अच्छी पुट्स में, बिकॉज अगर उस दिन एक्सपायरी नहीं है तो ऑब्वियसली थीटा डी के इतना नहीं होने वाला है. ठीक है, अगर आप कोई एट द मनी पुट भी सेल करते हो, अगर मंडे ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे भी है, तो जीरो तो नहीं होने वाला है ऑब्वियसली. तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आपकी पुट पोजीशन आप क्लोज करके यहाँ पे आप एट द मनी कॉल ले सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया इन योर पुट पोजीशंस, तो इंस्टेंटली आप स्विच करिए और यहाँ पे बाय कॉल्स. ओके, इट विल बी मच मोर प्रॉफिटेबल. तो ये पूरी रैली आपको मिलेगी. ओके, लुक एट दिस एग्जांपल गाइस. मार्केट ओपन हियर, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, पीडीएच का, बट इंस्टेंटली इट केम बैक अगेन इनसाइड द प्रीवियस डेज रेंज. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या सजेस्ट किया था गाइस कि यहाँ पे हमें पुट सेल करना है लोअर लेवल्स. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पुट सेल करते हो, देखिए इसके बाद मार्केट ने फिर से पीडीएच का ब्रेकआउट दिया है, बट देन अगेन इट फेल्ड. ठीक है, यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया, अगेन इट वेंट इनसाइड द पीडीआर. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट फेलियर दिया है, देयर इज अ हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस कि वो नेक्स्ट टाइम भी ब्रेकआउट फेलियर ही देगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर रिस्पॉन्सिव बायर्स है तो हो सकता है कि मार्केट या फिर प्राइस फिर से अगर किसी लेवल पे आए तो रिस्पॉन्सिव बायर्स विल act again, right? So that's why I suggested यहाँ पे अगर फिर से PDL या फिर PDH का ब्रेकआउट होता है, don't re-enter guys. ओके, तो यहाँ पे अगर आपने पुट सेल किया होता तो मे बी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता या फिर नहीं भी होता. इट डिपेंड्स ऑन थीटा डी के. ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हुआ है, यू कैन re-enter and short puts again. ओके, ओके, एंड लुक एट द नेक्स्ट डे. मार्केट यहाँ पे ओपन हुई एंड देन यहाँ पे मोर ऑफ अ साइडवेज मूवमेंट, बट देन दिस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दिया दैट बायर्स आर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पे और अबाउ दिस कैंडल्स हाई वी हैव टू एंटर और वी हैव टू बाय कॉल्स, बिकॉज प्राइस इज ट्रेडिंग अबाउ पीडीएच एंड बियॉन्ड द प्रीवियस डेज रेंज, राइट. एंड लुक एट द रैली. दिस इज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स रैली इन निफ्टी. सो अगर आपने कोई कॉल भी खरीदा है, यू विल इजीली गेट 100 to 150 पॉइंट्स इंट्राडे. अगर आपको 100 पॉइंट्स भी मिलते हैं, सो इट इज 7,500 रुपीज पर लॉट, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, सेम यहाँ पे मार्केट ओपन, देन इट ब्रोक द पीडीएच एंड लुक एट द रैली. सिंपली यहाँ पे कॉल बाय करना है हमको, एज सिंपल एज दैट. एंड ऐसे कई एग्जांपल से गाइस आई वुड सजेस्ट कि आप बैक टेस्टिंग करिए, प्रीवियस डेज हाई प्रीवियस डे लो को नोटिस कीजिए, बैक टेस्टिंग भी कीजिए, लाइव मार्केट में भी नोटिस कीजिए, एंड उसके बाद ट्रेड ऑन दिस कंसेप्ट. ओके, थैंक यू सो मच गाइस for listening to me, and if you have any doubt regarding this PDH and PDL concept, feel free to comment down below, and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe. Thank you.